Hello everyone. So welcome to the next video. So in this video we are going to do our chapter 10, that is wave optics, and in part 1 of this wave optics we have done Huygens principle, and we have proved the law of refraction, reflection and Snell's law, and this is our part 2 of wave optics. And in this video we are going to do a very important topic, that is interference, and this is also known as Young's double slit experiment. Because this was an experiment done by Young's, the name of the scientist is Young's, and it is उसमें यंग ने इसमें दो स्लिट्स यूज किए थे, सो इट इज़ नोन एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. So what is this interference, or what's Young's double slit experiment? So this is definition of interference, that it is phenomena of redistribution of light energy on account of superposition of light waves from two coherent sources. That is, for example, हमारे पास ये light source है, this is our light source. So this is our light source, एंड इस लाइट सोर्स में से जो लाइट निकलेगी उसके आगे हमने यहाँ दो स्लिट्स लगा दिए हैं, मीन्स दो होल्स लगा दिए हमने. एंड तो इसमें क्या होगा कि जब दो लाइट वेव्स निकलेंगी तो उनका क्रस्ट होगा, एक ट्रफ होगा. सो फॉर एग्जांपल वी रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस इज आवर क्रस्ट, दिस एंड दिस इज आवर ट्रफ, दिस इज ट्रफ एंड दिस इज क्रस्ट. सो आई हैव शॉन दिस लाइन, जो डार्क लाइन है ये क्रस्ट है, एंड द डॉटेड लाइन आई हैव शोन हेयर, दिस इज ट्रफ. सो दोनों वेव्स के ही क्रस्ट होंगे और ट्रफ होंगे. तो जब दो वेव्स निकली हैं उनके जब हम क्रस्ट और ट्रफ को हम जब सुपर इम्पोज करेंगे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये क्रस्ट है और दूसरी भी एक लाइट वेव है, उसका भी ये क्रस्ट होगा एंड ये ट्रफ होगा. तो जब ये लाइट वेव सुपर इम्पोज करेंगी तब हमें क्या होता है कि स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अवर स्क्रीन, सो इस पर हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है. सो दिस इंटरफेरेंस पैटर्न, दिस इज, यू कैन सी देयर इज डार्क एंड, लेट मी, यस दिस इज अवर स्क्रीन, ये ब्लू कलर की हमारी स्क्रीन है, एंड इस पर हमें ये डार्क एंड दिस इज ब्राइट बैंड, and this is a dark band, this is not visible like this here, it is a dark band, and यहाँ फिर से एक bright band है, and यहाँ पे एक dark band है, and this is again a bright band. तो हुआ क्या कि जब हमने लाइट सोर्स रखा और वो लाइट सोर्स बहुत ही थिन स्लिट्स में से, बहुत बहुत स्मॉल डायमेंशन के स्लिट्स में से पास हुई, तो हमें स्क्रीन पे एक ये पैटर्न बना, मतलब कि डार्क और ब्राइट बैंड्स का हमें पैटर्न मिला. सो दिस इज़ द नॉन एज इंटरफेरेंस. एंड ये पैटर्न हमें क्यों मिला? क्योंकि जो लाइट वेव्स थी ना दोनों सोर्स की, ये S1 सोर्स है एंड ये S2 सोर्स है, इसमें से जो लाइट्स निकली, जो लाइट वेव्स निकली वो दोनों सुपर इम्पोज की, एंड उन दोनों वेव्स ने सुपर इम्पोज करके ये पैटर्न बनाया है स्क्रीन पे. दिस इज अवर इंटरफेरेंस पैटर्न. दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस. दिस इज इंटरफेरेंस पैटर्न. So we observe an interference pattern on the screen, and this is due to superposition of light waves from these two coherent sources. Coherent sources means two sources which are in same phase and having the same frequency. So now what is the properties of the interference pattern observed on the screen? So we can see here that it is written that alternate bright and dark fringes bands are observed. मतलब ये ब्राइट है और ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, और ये ब्राइट है, ये डार्क है. इस तरीके से हमें बैंड्स मिलते हैं, इन बैंड्स को हम फ्रिंजेस भी कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल वी कैन ऑल्सो सी हेयर, सो दिस इन दिस डायग्राम वी कैन सी दैट in this diagram we can see that here the light is coming and there's two slits, and we can observe the interference pattern on the screen. In the next diagram also we can see, yes, this is a source and there are two slits, and there's crust and trough of these two waves here, and here we can see this is bright band
this is can be of any color. For example, we have used a red light, then the bright band will be of red color. If we has blue light, the bright band will be of blue color. And this is dark band, means black space, there nothing here. This is dark, this is black space, nothing here. And this is again bright, and this is again bright. So this is the interference pattern observed. Now yes, so this is interference pattern. And also for example, we can see this is known as central maxima. दिस जो हमारे बीच में जो ब्राइट बैंड होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा. एंड दिस इज अवर फर्स्ट डार्क बैंड, दिस इज फर्स्ट डार्क बैंड. एंड इस साइड भी हमारा क्या है, ये भी फर्स्ट डार्क बैंड है हमारा. दिस इज ऑल्सो फर्स्ट डार्क बैंड. नाउ दिस इज अवर सेकेंड ब्राइट बैंड. और इस तरफ भी हमारा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो सेकेंड bright band. This is also second bright band. So this is our central maxima. Central maxima means जो हमारा एकदम सेंटर में इंटरफेरेंस पैटर्न के पूरे सेंटर में होगा, उसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं. एंड दिस इज फर्स्ट डार्क बैंड, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट डार्क बैंड ऑल्टरनेट साइड पे. एंड ऑल्टरनेट साइड पे दिस इज सेकेंड ब्राइट बैंड, दिस इज सेकेंड ब्राइट बैंड. सो सॉरी, it's mistake. It's first, this is first bright band, this is first bright band, this is also first bright band. So this is all. So now what are the properties of the interference pattern? So that alternate bright and dark fringes are observed. Now the second is that सेंट्रल बैंड इज़ ऑलवेज मैक्सिमा. मतलब कि यहाँ हमें जो सेंटर में मिलेगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा. कभी भी हमें सेंटर में जो मिल रहा है बैंड वो डार्क बैंड नहीं होगा, दैट इज़ ऑलवेज कलरफुल बैंड, means of red or blue or whatever. And the next property, this is very important, that width of all band is same. means कि जो सभी bands हैं, ये dark bright ये सब ही same width के होंगे. इसमें ऐसा नहीं है कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसकी width ज़्यादा होगी. all the bands are of same width. So now we will study what is constructive interference and destructive interference. Constructive interference, as we can see, let's read the definition. When crust fall on crust and trough fall on trough. For example, in this case means ki here we can see that crust falls on crust and trough falls on trough. These dotted lines are trough and these straight lines, bright lines are crust. तो जब crust पे फॉल करती है एंड ट्रफ पे फॉल करती है, तो जो हमारी इस वाली वेव में हम दे सकते हैं, जैसे कि इस लाइट वेव में क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल कर रही है एंड ट्रफ पे ट्रफ फॉल कर रही है, तो जिसमें रिजल्टेंट हमारी जो वेव होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, वो ऐसी होती है. तो दोनों का प्लस कर देंगे हम. सो इसमें जो हमारा रिजल्टेंट बैंड मिलेगा वो एक ब्राइट बैंड होगा, दैट विल बी अ ब्राइट बैंड, एंड उसकी इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी. इज इट क्लियर? सो हमें यहाँ ब्राइट बैंड क्यों मिला है? दिस इज बिकॉज ऑफ क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट एंड ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ. उसकी वजह से हमें यहाँ ब्राइट बैंड मिले हैं. ये सब ब्राइट बैंड उसी की वजह से हैं. ठीक है. नाउ it is also known as constructive interference. When we get a bright band, this is known as constructive interference. Now what is destructive interference? जब हमारा crust falls on trough and trough falls on crust, तो जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल किया है एंड ट्रफ के ऊपर क्रस्ट फॉल किया है, तो उसमें हमारी जो रिजल्टेंट इसमें जो हमारा वेव होगी दैट इज़ ज़ीरो, मतलब कि वो ज़ीरो है. तो इसमें हमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मिलेगा दैट इज़ मिनिमम, एंड वी ऑब्जर्व अ डार्क बैंड हेयर. मीन्स ये जो हमें डार्क बैंड मिल रहे हैं ये किस वजह से मिल रहे हैं? जब क्रस्ट ट्रफ पे और ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करेगा तब जो रिजल्टेंट है हमारा वो मिनिमम इंटेंसिटी का होगा एंड हमें एक डार्क बैंड मिलेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने
इंटरफेरेंस की डेफिनेशन की है। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या है, जब दो लाइट वेव्स हैं वो उनमें सुपर पोजिशन होती है एंड हमें एक रिजल्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है स्क्रीन पे, जिसमें हमारे पास डार्क एंड ब्राइट बैंड्स होते हैं। एंड ये जो बैंड्स होते हैं इनकी विड्थ सबकी सेम होती है एंड सेंट्रल बैंड हमेशा ही ब्राइट होता है इंटरफेरेंस में। एंड वी हैव स्टडीड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट एंड ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, तो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और हमें एक ब्राइट बैंड मिलता है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब क्रस्ट ट्रफ पे और ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करती है एंड जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है हमारा वो मिनिमम होता है एंड हमें एक डार्क बैंड मिलता है। वी कैन सी दिस इन पिक्चर ऑल्सो, लेट मी शो। So here you can see this is an interference pattern. So this is our central maxima है यहाँ बीच में and all width of all the मतलब कि जो भी fringes हैं हमारी ये bright and dark fringes हैं, these are of same width। ऐसा नहीं है कि किसी की width ज़्यादा है किसी की width कम है, सबकी width same है and we have alternate dark and bright fringes। So this is interference from two narrow slits। So this is interference pattern। Now let's go on the next topic। So let's move on the next topic। So now next we don't have derivations, we have to do some results on and direct formula can come in the exam or a numerical based on that formula can come in exam, and no derivations are now in the syllabus। So earlier they were but now they are removed from the syllabus। So now our next topic is path difference। The next topic is path difference। So what is path difference? For example, these are two slits S. This is slit S1 and this is slit S2, and this is a screen on which we are getting interference pattern। यहाँ पे हमें interference pattern मिल रहा है। So so we are having interference pattern here। So it will be maybe a bright fringe here and a dark fringe and a bright fringe and a dark fringe, somewhat like this। The pattern is keep going on here। So let us take, we have taken a point P here, fine। So this is a distance S1P, मतलब ये हमारा distance है P point पे, and this is S2P, this is S2P, ये एक point है। P is any point on screen। So हमारे पास ये हमारी screen है and ये हमारे slits हैं। सो हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस इज दिस इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव्स। मीन्स पॉइंट पी पे इन दोनों ही लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका डिफरेंस। तो फिर इसमें जो हमारा इसमें जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया इसमें हम क्या करेंगे, S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड इसमें ये हमारा मान लीजिए x है, तो दिस इज x। तो x क्या होगा हमारा, x इज अवर पाथ डिफरेंस, दिस इज x गिवन बाय x एंड x इज अवर पाथ डिफरेंस, दिस इज गिवन बाय S2P माइनस S1P। तो दिस एट पॉइंट P। तो किसी भी पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि दो स्लिट्स ने से जो लाइट निकली है उन लाइट ने जो डिस्टेंस कवर किया है उन दोनों का डिफरेंस। सो इसमें हमारा पाथ डिफरेंस को हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज रिप्रेजेंट पाथ डिफरेंस को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, एंड दिस इज S2P मीन्स S2P माइनस S1P। सो दिस इज अवर पाथ डिफरेंस। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट फेज डिफरेंस। नेक्स्ट इज अवर फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जैसे कि पाथ डिफरेंस है
वो डिस्टेंस होता है, मीन्स इसकी यूनिट्स जो है वो मीटर में होती है, दिस इज इन मीटर। और जो फेज डिफरेंस है वो हमारा एक एंगल है, तो इसकी ये रेडियंस में होगा। ठीक है, तो व्हाट इज फेज डिफरेंस? सो फेज डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन फेज ऑफ टू वेव्स। जो दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं उनके बीच में कितना फेज का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। फॉर एग्जांपल आई कैन let me copy it here. So for example, we are having S1p, this is a wave, this is a light wave, that is S1p, this is S1p, and this is a light wave S2p we are drawing। इसमें कितने हमारे पास ये क्रस्ट और ट्रफ है, हम जैसे कि इसमें देख सकते हैं हमारे पास एक क्रस्ट है और ये दूसरा क्रस्ट है, ये हमारा एक ट्रफ है और ये दूसरा ट्रफ है। दिस इज़ वन, लेट मी ड्रॉ दिस, दिस इज़ वन। सो ये हमारा एक क्रस्ट है, वो दूसरा ट्रफ है, ये एक क्रस्ट है और दूसरा ट्रफ है। अगर मान लो कि हम एक दूसरी वेव भी बना रहे हैं, सो दिस इज़ अवर दूसरी वेव। सो इसमें देखेंगे हम कैसा है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 2 3 4 और ये सॉरी 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें एक क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, ये तीसरा क्रस्ट है, और इसमें ट्रफ कितने हैं, 1 और 2। तो हमारा फेज डिफरेंस क्या होगा? सो दिस इज अवर फेज डिफरेंस, दिस। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सो 1 2 3 4 और 5। तो इसमें हमारा ये हमारा ट्रफ है 1 और 2, और इसमें हमारे क्रस्ट कितने हैं, 1 2 सॉरी, और ये हमारा तीसरा क्रस्ट ट्रफ है। ठीक है, तो दिस इज़ अवर, ये जो हमारा ये है ना, दिस थिंग, इसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस थिंग, ये हमारा क्या है, फेज डिफरेंस है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि S1p में जो था वो S2p में भी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। सो दिस फेज इज़ नोन एज, ये हमारा कितना फेज है, ये हमारा फेज डिफरेंस है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पूरा जो होता है हमारा, ये एक लैम्डा होता है, ये पूरा हमारा वेवलेंथ होता है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस होल इज़ लैम्डा। ठीक है, तो फिर हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज़ अवर लैम्डा बाय 2। सो दिस इज़ अवर लैम्डा बाय 2। सो अगर हम करेंगे, जब हमारा फेज डिफरेंस 2 पाई है, तब हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा है। इट मीन्स जब हमारा पाथ डिफरेंस, यू कैन सी हियर, ये हमारा पाथ डिफरेंस है लैम्डा। ठीक है, मतलब हमारी वेवलेंथ है। तो इसमें हमारा फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस मीन्स हमारा फेज कितना है इसमें, यहाँ से लेके 0 से लेके ये 2 पाई तक है। तो जब आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तब आपका फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, जब आपका फेज डिफरेंस आपका पाई बाय 2 है, इफ़ फेज डिफरेंस इज इफ़ फेज डिफरेंस इज पाई, अगर आपका फेज डिफरेंस पाई है, फॉर एग्जांपल दिस, ये 0 से लेके पाई है। ठीक है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। तो फिर आपका पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस है आपका लैम्डा बाय 2। दिस इज अवर लैम्डा बाय 2 ना, पूरा आपका लैम्डा होता है, तो ये पूरा लैम्डा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फिर ये कितना हो गया, लैम्डा बाय 2 हो गया। ठीक है, तो इन सेम केस अगर आपका फेज डिफरेंस, इफ फेज डिफरेंस इज फाई, अगर कोई एंगल आपका फाई है, फेज डिफरेंस कोई भी एंगल है फाई, तो आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई।
इज इट क्लियर? जो आपका फेज डिफरेंस आपका 2 पाई था तब आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा था, एंड जब का फेज डिफरेंस 5 है तो इट विल बी पाथ डिफरेंस विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एक्स. सो दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फेज डिफरेंस जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं. सो व्हाट इज दिस? दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस. सो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर relation between path difference and phase difference. It can also come in MCQ questions. So this is our path difference and phase difference. ये किसी भी पॉइंट P पर जो स्क्रीन पे है उसमें वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज़ पाथ डिफरेंस, एंड उन वेव्स में के फेज में कितना अंतर है उसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं. एंड हेयर अगर हम देख सकते हैं कि इधर हमारा इस केस में हमारा जो था पाथ डिफरेंस हमारा कितना था, इसमें हमारा λ/2 था पाथ डिफरेंस इस केस में, है ना. एक हमारा ट्रफ का फ़र्क है तो दैट इज़ λ/2. तो इसमें हमारा फेज़ का डिफरेंस, ये तो पाथ डिफरेंस हो गया, तो फेज़ डिफरेंस हमारा कितना हो गया हमने किया यहाँ पे. तो फेज़ डिफरेंस आपका कितना है पाई का. तो मतलब इन दोनों लाइट वेव्स में कितना फेज़ डिफरेंस है, पाई का फेज़ डिफरेंस है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेज़ डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट topic, that is, let me draw it. So this is our next topic, that is width of dark and bright fringe. फ्रिंज मीन्स बैंड, जो हमारे बैंड्स बन रहे हैं उन्हीं को हम फ्रिंज कहते हैं. सो उनकी विड्थ कितनी होगी एंड वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. सो लेट मी ड्रॉ दैट वी आर हैविंग हियर, दीज आर 2 slits. दिस इज S1 and S2 एंड मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज D. दिस इज स्मॉल d and this is screen on which we are obtaining the interference pattern. And what is capital D? Capital D is distance between screen and slit. So we can write that what is small d? It is distance between slits. And what is capital D? It is distance between screen and slits. And then what is lambda? Lambda is wavelength of light. Means जो भी हमने लाइट यूज़ की है, जो भी हम यहाँ लाइट सोर्स यूज़ करेंगे उसके लैम्डा उसकी वेवलेंथ है. सो व्हाट विल बी बीटा? मीन्स फ्रिंज विड्थ कितनी होगी. सो द बीटा इज गिवन बाय, बीटा इज द विड्थ ऑफ फ्रिंज विड्थ, वी कॉल इज एज बीटा. मीन्स कि जो आपका बैंड है उसकी चौड़ाई कितनी है, दिस इज़ नॉन एज बीटा. वो कितना चौड़ा होगा, दिस इज़ बीटा. ठीक है, मतलब कि ये डार्क में भी हम दिस इज़ बीटा. सो व्हाट विल बी बीटा? बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट, capital D upon small d. So this is very important formula. We don't need to derive it because that is not in our syllabus. We have to directly remember it, that fringe width is given by this formula. So now we can see कि जैसे जैसे कि हमारा अगर लैम्डा ज़्यादा है तो हमारी जो बीटा है वो भी ज़्यादा होगा. बीटा मीन्स फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल जो लैम्डा है हमारा वो रेड का ज़्यादा होता है. लैम्डा ऑफ रेड इज़ मोर, सॉरी, तो मतलब कि जो फ्रिंज विड्थ है वो रेड की ज़्यादा होगी. ठीक है, ब्लू के कंपैरिजन में. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हमारी जो रेड की जो हमारी बैंड्स हैं वो ऐसे बनेंगे. दिस इज़ रेड, इसमें इनका बीटा ज़्यादा होगा. वहीं अगर हम ब्लू का बनाएं तो ब्लू के जो बैंड्स हैं वो ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, वो पतले पतले होंगे. सो दिस इज़ द
सो दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ ब्लू लाइट. इसमें जो हमारे बैंड्स हैं वो ज़्यादा मोटे नहीं हैं, ज़्यादा ये पतले पतले हमारे, लेकिन जो रेड में जो है हमारे जो बैंड्स हैं वो मोटे मोटे होंगे. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड एंड blue. So this is now this was the first point. Now the second point is that as d increases beta increases. means अगर हमारी स्लिट और स्क्रीन में अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दूर जाती जा रही है, तो हमारा बीटा जो है बढ़ता जाएगा. एंड थर्ड इज अगर हमारा डी कम हो रहा है, मीन्स स्लिट्स में हमारा डिस्टेंस, स्लिट्स जितनी पास पास होंगी उतना हमारा जो फ्रिंजेस है वो ज़्यादा चौड़ी बनेंगी. ठीक है, तो हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्रिंजेस मोटी मोटी उनका विड्थ से ज़्यादा हो, तो फिर हम उनका स्क्रीन से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रखेंगे एंड स्लिट्स में जो डिफरेंस है उसको हम कम रखेंगे. यू कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला. सो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर width of a fringe. It is same for, it is either dark or bright. The formula is same because width is same in interference pattern. So now we are moving to our next topic. So we are moving to our next topic, that is conditions for interference and डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. मीन्स कि हमारा जो पाथ डिफरेंस है या फिर फेज डिफरेंस है कितना हो कि हमारी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मीन्स ब्राइट बैंड बनेगा, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मीन्स डार्क बैंड बनेगा. तो वी विल सी दैट नाउ. सो नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर constructive interference, constructive and destructive interference. So we will do constructive and destructive interference. So for example, we are having two light waves and A and B are the amplitude of two light waves. मतलब लाइट वेव्स आ रही है, उनके एम्पलीट्यूड क्या है, एक का एम्पलीट्यूड A है और एक का एम्पलीट्यूड B है. देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड I'm not doing it here. Let me just remove it. So first of all I am doing it for constructive interference. First is constructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जहाँ पे हमारी जो इंटेंसिटी है दैट इज़ मैक्सिमम. इंटेंसिटी इज़ मैक्सिमम मीन्स वहाँ पे हमें एक ब्राइट बैंड मिल रहा है. सो लेट मी राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्राइट बैंड. लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी. यस. सो हमारे पास मान लीजिए कि ए और बी जो है हमारे, ए और बी हमारे पास क्या है, हमारे पास एम्पलीट्यूड हैं टू वेव्स के. दीज आर एम्पलीट्यूड ऑफ टू लाइट वेव्स. जो हमारे पास दो लाइट वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड हैं ए और बी. तो इसमें हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वी हैव टू डायरेक्टली डू दिस इज जस्ट सुपर इम्पोजिशन. तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, इट इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दोनों का जो एम्पलीट्यूड है उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई. जहाँ फाई क्या है हमारा, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स. दोनों वेव्स में जो हमारा फेज डिफरेंस है
उसको हमने फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. नाउ व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मीन्स जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उनकी इंटेंसिटी क्या होगी. दिस विल बी आई इक्वल्स टू I1. I1 क्या है, एक वेव है उसकी जो इंटेंसिटी कितनी है, एंड I2 दूसरी वेव की इंटेंसिटी कितनी है, सॉरी, प्लस टू अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट I2 cos phi. So this is our formula for resultant intensity and resultant amplitude. तो अगर जहाँ हमारा मैक्सिमम बनेगा तो वहाँ पे हमारी इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम होगी, तो हम उस पर कॉस फाई हमारा जो है क्या होगा, उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे. एंड कॉस फाई पे डिपेंड करेगा कि हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है. सो हम पहला केस कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए. सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो मतलब कि हमारी जो ब्राइट बैंड बन रहा है तो इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम है, तो हमारा आई इज़ मैक्सिमम. सो इसमें क्या केस होगा, हमारा आई मैक्सिमम कब होगा, आई हमारा मैक्सिमम कब होगा इस केस में, जब हमारा जो कॉस फाई है दैट विल बी 1. इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन कॉस फाई इज 1. सो हमारी आई इसमें कॉस फाई हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2I1 कॉस फाई इज 1. ठीक है. सो दिस वी कैन ऑल्सो बी राइट एज I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्केयर, मतलब दोनों की इंटेंसिटी का होल स्केयर हो जाएगा. सो दिस इज बी अवर रिजल्टेंट इंटेंसिटी. जब हमारा ब्राइट बैंड बनेगा तब ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी रहेगी. तो कॉस फाई 1 कब होता है, कॉस फाई इज 1 व्हेन, जब हमारे फाई की क्या वैल्यू, कॉस 1 होता है हमारा 0 पे. सो इट विल बी व्हेन 0, इट विल बी व्हेन 2 पाई, इट विल बी व्हेन 4 पाई, सो ऑन. मीन्स जब हमारा फाई जो है वो 2n पाई होगा, मतलब कोई इवन इंटीजर होगा. ठीक है. इसमें हमारा n क्या है, n इज़ 0 1 2 3. यहाँ n का मतलब है हमारा 0 1 2 3. तो हमारा ये क्या है, हमारा फाई क्या था, हमारा फेज डिफरेंस. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा एक ब्राइट बैंड या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा, जब हमारा फेज डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस इज 2n पाई. एंड हमने पढ़ा था कि जब हमारा फेज डिफरेंस 2n पाई है तो हमारा पाथ डिफरेंस x कितना होगा हमारा, दैट विल बी पाथ डिफरेंस x विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई, दैट विल बी 2 पाई से 2 पाई कैंसल, दैट विल बी n लैम्डा. फाइन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है हमारा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है हमारी, जब हमारा जो फेज डिफरेंस है दैट इज 2n पाई, एंड जो हमारा पाथ डिफरेंस है दैट इज n लैम्डा. तो जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तब हमारा ब्राइट बैंड बनेगा या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा. तो जहाँ भी ये कंडीशन है वहाँ पे हमारा ब्राइट बैंड बन रहा है. ठीक है. सो नाउ वी विल डू द सेम प्रोसीजर फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट. You have to learn it. The phase difference is 2n pi and path difference is n lambda. And what is the value of n? N is 0 1 2 3. Fine. So for example जैसे कि n क्या होगा हमारा, so ये हमारी जैसे कि स्क्रीन थी हमारी, let me draw it here. ये हमारे 2 स्लिट्स थे और ये हमारी स्क्रीन थी. तो यहाँ पे हमारे पैटर्न बन रहे थे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर, दिस इज अवर पैटर्न. ये हमारा है ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड है.
ये हमारा डार्क बैंड है, ये फिर हमारा ब्राइट बैंड है, फिर डार्क के बाद ये फिर से ब्राइट बैंड है, एंड दिस इज ऑल्सो अ ब्राइट बैंड. So what is n equals to 0? n equals to 0 means here it is n equals to 0. फाइन. तो यहाँ पर ये हमारा n equals to 0, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमम है. मतलब यहाँ पे हमें एक मैक्सिमा मिलेगा, मतलब ब्राइट बैंड मिलेगा. फिर n equals to 1, n equals to 1 इज़ फॉर हेयर. इन दोनों पे ही हमारा ब्राइट बैंड क्या है, n equals to 1 मीन्स कि फर्स्ट हमारे मैक्सिमा है. एंड देन दिस इज n equals to 2. ये ब्राइट बैंड के लिए हमारा, ठीक है. दिस इज़ फॉर ब्राइट बैंड. तो यहाँ पे हमारा जो पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस है, इस पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा पे इसको हम 0 पुट करेंगे तो फेज डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 0, और पाथ डिफरेंस भी कितना आ जाएगा हमारा, 0. ठीक है. एंड इधर हमारा है n, मीन्स कि हमारा फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस है हमारा, इसमें पाथ डिफरेंस हो जाएगा आपका लैम्डा, और जो आपका फेज डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई. मतलब जहाँ पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहाँ आपका मैक्सिमम हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो x इक्वल्स टू लैम्डा एंड फाई इक्वल्स टू 2 पाई. नाउ n इक्वल्स टू 2 मीन्स जो हमारा दूसरा सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा जो हमारा दूसरा मैक्सिमा बन रहा है इस साइड पे, दैट विल बी जहाँ n2 है, तो इसमें हमारा जो x है वो विल हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा, और जो फेज डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा 2 into 4 पाई. सो हेयर ऑल्सो इट विल बी x इक्वल्स टू 2 लैम्डा and phi equals to 4 pi. You don't have to do it, not to do in exam, not to do in exam. This thing you don't need to do in exam, this is for your understanding only, and यहाँ तक आपको exam में करना है. This is not in exam, you don't have to do it in exam. So now we are going to फाइंड द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा उसकी हम कंडीशन फाइंड करेंगे. सो दिस इज कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स डार्क बैंड. Dark band means intensity is minimum. मतलब कि जो हमारी इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम. वी कैन राइट हियर इट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम. सो आई का हमारा जो फॉर्मूला था दैट वाज I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi. So this will be minimum when cos phi is -1, and cos phi हमारा -1 कहाँ होता है, it is on pi, 3 pi 5 pi means odd integral इंटीजर पे होता है हमारा. so हमारा phi कितना आ जाएगा, it will be 2n minus 1 pi. जहाँ हमारी n की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, it can be 1 2 3 so on. क्यों हम 1 पुट करेंगे तो it will be 1 पुट करेंगे इट विल बी पाई, एंड देन 2 पुट करेंगे इट विल बी 3 पाई, सो ऑन अप टू दिस. सो जब हमारा वी कैन सी कि हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब हमारी फेज डिफरेंस है वो हमारा कितना होगा, 2n minus 1 पाई मीन्स एक ऑड इंटीजर की वैल्यू होगी उसकी. एंड व्हाट विल बी अवर x, दैट इज x की वैल्यू क्या होगी हमारी, मीन्स पाथ डिफरेंस हमारा क्या होगा, इट विल बी लैम्डा अपॉन 2 इंटू फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस इज 2n minus 1 पाई. सो पाई से पाई कैंसल, इट विल बी 2n minus 1 lambda by 2. This is our x. So this is our x. So again this is very important, we have to write it कि हमारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है. सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है. सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा फाई जो होता है दिस इज फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस हमारा होता है
2n-1 पाई। एंड हमारा जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस होता है हमारा 2n-1 λ/2. So this is very important, you have to learn it. Now one thing you have to keep in mind that here n is not starting from 0, it is starting from 1 2 3. In the case of constructive interference, our n was starting from 0. And what 0 represent? 0 represent this. The 0 represent the सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा 0 को रिप्रेजेंट करा था। लेकिन डिस्ट्रक्टिव के केस में हमारा हमारा जो n है वो 1 से स्टार्ट होता है, एंड दैट n इज दिस इज n इक्वल्स टू 1, दिस इज n इक्वल्स टू 2। ये डार्क बैंड के लिए, ये जो हमारे डार्क बैंड है जो एकदम ब्लैक है, इसके लिए n इक्वल्स टू दिस इज n इक्वल्स टू 1, दोनों साइड में n इक्वल्स टू 1 डार्क बैंड है। फिर जो दूसरा वाला जो हमारा डार्क बैंड है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 2। फाइन। तो इसमें अगर हम देखें हमारा फेज डिफरेंस और वो क्या होगा हमारा, तो इसमें अगर हम x को n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 1 के लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा फेज डिफरेंस होगा, इट विल बी 3 पाई, सो इट विल बी पाई। एंड हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी λ/2। सो इसमें हमारा जो फाई है दैट विल बी पाई, एंड x है हमारा λ/2। हेयर ऑल्सो फाई इक्वल्स टू पाई एंड x इक्वल्स टू λ/2। मीन्स जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हमारा फर्स्ट डार्क बैंड बनेगा। अब सेकेंड डार्क बैंड कब बनेगा हमारा, दैट विल बी n इक्वल्स टू 2। तो इसमें हम n को 2 पुट करेंगे तो इट विल बी 3 पाई, 4 - 1 दैट विल बी 3 पाई, एंड पाथ डिफरेंस हमारा होगा इट विल बी 3 λ/2। सो दिस इज कंडीशन when we will get our second dark band, it will be 3 pi and phi is 3 λ/2। here also phi equals to 3 pi and x equals to 3 λ/2। here it is x। so I hope it is clear. When this condition is, for example, satisfied, then we will get our first bright band. When this condition is satisfied, we are getting our second bright band, and this is the condition for bright and dark bands or constructive and destructive interference. So this topic was very important. So this topic is very important. You have to learn the conditions कि path difference कब maximum मतलब कि intensity कब maximum और minimum होगी, और उसकी conditions क्या क्या हैं. So this is very important. So this is all in today's video, and the topic is not yet completed, so we will continue it in next video. So thanks for watching, and we will continue the interference only in the next video. Thanks for watching. See you in the next video.